Hey, hello guys, how are you all? So welcome back again to Maximus. Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So guys, in today's class we are basically going to start a questions related to circles. So this is the second lecture of circle, and in circle in first lecture we will understand all the theory, all the concept, related concept, everything we'll try to learn. हमने जितने भी theorems थे सारे theorems हमने learn किया, right? And in this class we are going to learn about the questions related to all the theory we learned in last class, right? So let's tag the topic and let's try to solve the question. Chalo. So this you already know about the circles, है ना? Circle is the locus of a point which moves in a plane in such a way that, है ना, the distance from a fixed point is always constant. So this is the basic definition of a circle. So this है ना, so this you understand this, and regarding this you already have the understanding. So this is the tangent. Tangent क्या होता है? Tangent ऐसा point होता है, line होता है, line segment होता है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है एक्सटर्नली, राइट. सीकेंट क्या होता है? इंटरनली सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दैट इज द सीकेंट. टेंजेंट दिस इज द सीकेंट, दिस इज द, ठीक है. डायमीटर यू ऑलरेडी, दिस इज लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. रेडियस you already know, chord you already know, and this is the circumference. This already you have the understanding regarding all the things, ठीक है. चलो, so this you already know what is this है ना. So radius का definition is the definition of the radius. So this is the circumference, this is 2 pi r है ना, entire perimeter of a circle. Chord you all know, the chord is the circle of line segment joining the any 2 point of a circle, ठीक है. Similarly diameter का, this is the largest chord of a circle. चलो, होप दिस ऑल थिंग्स है ना प्रीवियस क्लास में हमने लर्न किया था, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग होगा. चलो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, व्हाट इज सीकेंट? सीकेंट इज द लाइन सेगमेंट व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट द 2 पॉइंट, दैट इज नोन एज सीकेंट, ठीक है. सिमिलरली व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज द लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट ए touches the circle at only at one point externally, right? So that is known as tangent of a circle. चलो, on the basis of this thing है ना, हमने क्या किया था in previous class, जितने भी theorems है, all the theorems we try to learn, ठीक है, प्रूफ किया था, उसको लर्न करने की कोशिश करी थी. And in this class, on the basis of that understanding, we are going to do the problems related to all the NCERT problems related to that problems, ठीक है. चलो, so this is the first question we have is, from a point P 10 cm away from the center of a circle, a tangent PT of length 8 cm is drawn. Find the radius of a circle. So this question will also ask in year 2002. ऐसा कुछ है, ठीक है. चलो, तो अगर ऐसा कुछ है that means हमारे पास क्या, सबसे पहले तो क्या एक सर्कल है. So let's draw a circle. एक सर्कल ऐसा होगा, ठीक है. और सर्कल में क्या है, ये from a point P 10 cm away from the center. यहाँ पे कोई सेंटर होगा, है ना, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक है. तो यहाँ से पॉइंट P से लेके सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिस इज गिवन, दिस इज अ 10 सेंटीमीटर. लेट्स से दिस इज O, सेंटर O है एंड P है, इस एक्सटर्नल पॉइंट. अब यहाँ से क्या एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, एक यहाँ पे ड्रॉ होगा और यहाँ पे एक एक्सटर्नल टेंजेंट यहाँ पे होगा, है ना, एक टेंजेंट इस तरीके से कुछ ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, इस तरीके का टेंजेंट है. टेंजेंट PT ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन. सो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? दिस डिस्टेंस इज बेसिकली, तो ये क्या है, 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है. चलो, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल. तो रेडियस ऑफ ए सर्कल मतलब ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोलता है, मतलब ये वाली डिस्टेंस बेसिकली फाइंड आउट करने बोल रहा है, राइट. सो दिस O एंड दिस चेक, दिस इज Q पॉइंट, ठीक. OQ फाइंड आउट करने बोलता है, ठीक है. तो अगर ऐसा कुछ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी रिमेंबर दैट ऑल द थ्योरम्स ऑफ ए सर्कल व्हाट दैट सेज कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, है ना, दैट एक्चुअली इक्वल, मतलब ये वाले इक्वल होगा. सो दिस इज फर्स्ट थ्योरम ऑफ ए सर्कल. दूसरा क्या है कि फ्रॉम ए सेंटर टू रेडियस, जो लाइन सेगमेंट दैट टचेज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है, फ्रॉम लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट, है ना, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज परपेंडिकुलर. ये वाली क्या परपेंडिकुलर होती है, ठीक है. अगर ये परपेंडिकुलर होती है दैट मीन्स हमारे पास जो ये वाला अब जो कहानी बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, द ट्रायंगल POQ. सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना. राइट एंगल कहाँ पे है? एंगल Q इज व्हाट, दिस एंगल Q इज 90 डिग्री. सो देयरफॉर दिस विल बी हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना. सो देयरफॉर दिस OP विल बी हाइपोटेनस. सो देयरफॉर PO स्क्वायर कैन बी रिटन एज
ओ क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ पी क्यू स्क्वायर. सो दिस इज वॉट, दिस इज 100, ये 100 हो जाएगा. दिस इज वॉट एंड दिस इज वॉट ओ क्यू हमें फाइंड आउट करना है. एंड दिस इज वॉट, दिस इज 64, राइट. सो दिस ओ क्यू स्क्वायर विल बी 36 centimeter. Therefore o q will be what, o q will be 6 centimeter. Therefore what will be the radius of a circle? Radius will be 6 centimeter. ये हमें फाइंड आउट करना था. दिस इज 6 centimeter. ये हमें क्या फाइंड आउट करना था. ठीक है, समझ में आ गया? गॉट दिस थिंग, है ना? क्या था कि अगर कोई टेंजेंट, अगर एक्सटर्नल टेंजेंट है और सेंटर से अगर एक लाइन सेगमेंट उस टेंजेंट को ड्रॉ टच करेगी, सो दैट विल बी एक्चुअली बेसिकली परपेंडिकुलर. दिस इज द थ्योरम नंबर 2 ऑफ ए, थ्योरम नंबर 2 था ये. ठीक है, चलो अगर ये समझ में आएगा, लेट्स मूव टू थ्योरम नंबर 2 था. हाँ 2, हाँ 1 and 2 था, ऐसा 2 था, यस. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ए टेंजेंट पी क्यू फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ सर्कल रेडियस 5 centimeter मीट अ लाइन सेगमेंट. तो ऐसा एक सर्कल है. सो दिस इज वो सर्कल, है ना. और क्या है, एक टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी फ्रॉम ए सेंटर टू रेडियस 5 centimeter. एक रेडियस इज गिवन, दिस इज 5 centimeter, है ना, 5 centimeter. सो दिस इज ओ एंड इट्स क्यू, है ना. आ टेंजेंट पी क्यू फ्रॉम पॉइंट पी, यहाँ पॉइंट पी से यहाँ पे एक टेंजेंट आया है. ठीक है, एंड लेट्स टेक दिस इज लाइन सेगमेंट दैट मीट ओ पी. ठीक है, ऐसा कुछ है ओ. सो दैट ओ क्यू इज 13 centimeter. ओ क्यू इज 13 centimeter एंड फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू. चलो फिर से समझते हैं क्वेश्चन को. ए टेंजेंट पी क्यू, दिस इज अ टेंजेंट. ठीक है, पॉइंट पी फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 centimeter इज ड्रॉन, राइट. मीट अ लाइन सेगमेंट एंड दिस ओ क्यू मीन्स ओ एंड क्यू, सेंटर ओ. सो दिस इज, ये है ना. सो दिस इज क्यू, ये वाला पॉइंट है एट पर क्वेश्चन. एंड ये जो है दिस इज पी, वही मैं सोच रहा था, दिस इज पी. ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलर होता है, दिस वी नो, है ना. दिस वी नो एंड दिस इज ओ क्यू, दिस इज गिवन, दिस इज 13 centimeter. तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना. तो ट्रायंगल ओ क्यू पी क्या है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट. सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल है. ठीक है, हमें क्या पी क्यू फाइंड आउट करना है, ये वाली डिस्टेंस. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस व्हाट वी कैन राइट, दिस ओ पी विल बी हाइपोटेन्यूज. So this O Q square will be equals to O P square plus P Q square. हमें P Q square ये तो फाइंड आउट करना था. So this is basically what, this is given 169 and this is given how much, this is 25 is equals to P Q square. Therefore P Q square कितना होगा, therefore P Q square will be 144. Therefore P Q will be how much, therefore P Q will be 12 centimeter. So this distance will be 12 centimeter. ये हमें फाइंड आउट करना था. गॉट दिस थिंग, समझ में आ गया? एक्सटर्नल पॉइंट क्यू था, एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट पी पे टच कर रहा था, राइट. एंड द रेडियस ओ पी वो द रेडियस दैट इज 5 centimeter दैट वाज गिवन. ठीक है, तो बेसिकली क्या था, हमें ये तो परपेंडिकुलर था, दिस वी ऑलरेडी नो. सो इफ दिस इज सो, देयरफॉर दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. So if this is right angle triangle, therefore with the help of Pythagoras, so can we find out this thing, hypotenuse? So this was hypotenuse was given, and this base we had to find out, right? So we find out this thing. चलो अगर समझ में आ गया, let's move to next question. So the next question we have is the in a given figure, and the side AB, BC and CA, side AB, BC and CA of a triangle ABC touches a circle, circle center O and radius R at PQR respectively. ऐसा कुछ टच हो रहा है जैसे कि दिख रहा है ना. चलो इसको दिख रहा है, ठीक है. तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस ऑफ ये प्रूफ करना है और ये भी प्रूफ करना है, ए बी प्लस ऑफ सी क्यू ऐसा कुछ प्रूफ करना है. चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ है दैट मीन्स हमें क्या पता है, हमें तो पता होना चाहिए थियरम. सो व्हाट इज द फर्स्ट थियरम, हमने थियरम क्या लर्न किया है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, है ना, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, सो दैट बोथ आर इक्वल, है ना. ये हमें पता है. अगर ये हमें पता है दैट मीन्स व्हाट we can say PA will be equals to AR. What we can say BQ is equals to BP. What we can say CQ will be equals to CR. ये हम जानते हैं with the theorem. Tangent drawn from an external point to circle.
सो दिस ऑल आर इक्वल, ठीक है। और अगर ऑल आर इक्वल है ना, तो विद दिस थिंग है ना, हमें क्या है ए बी प्लस सी क्यू फाइंड आउट करना है, राइट, ए बी प्लस सी क्यू। सो देयर फॉर वट वी कैन से, पहला क्वेश्चन वी हैव इज ए बी प्लस ऑफ सी क्यू। तो ए बी क्या लिख सकते हैं, ए बी कैन बी रिटर्न एज वॉट, सो ए बी कैन बी रिटर्न एज दिस पी बी प्लस ऑफ ए बी, है ना, पी बी प्लस ऑफ ए बी कैन बी रिटर्न एज पी बी प्लस ऑफ ए पी एंड सी क्यू कैन बी रिटर्न एज प्लस ऑफ बी क्यू, है ना। सी क्यू को बी क्यू भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, बिकॉज बाय दिस इक्वेशन। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें क्या करना है, ए सी प्लस ऑफ बी क्यू करना है ना, तो ए सी प्लस ऑफ बी क्यू करना है, राइट। तो ए सी प्लस ऑफ बी क्यू अगर करना है तो दिस पी बी कैन बी रिटर्न एज ए वॉट, पी बी कैन बी रिटर्न एज ए आर, राइट। और दिस बी क्यू कैन बी रिटर्न एज बी क्यू, तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, सी क्यू को ऑलरेडी हमने बी क्यू कर दिया है। एंड दिस ए पी कैन बी रिटर्न एज ए पी कैन बी रिटर्न एज ए आर एंड बी पी कैन बी रिटर्न एज दिस बी क्यू, बी पी कैन बी रिटर्न एज बी क्यू प्लस ऑफ बी क्यू प्लस ऑफ बी क्यू, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्लस ऑफ बी क्यू प्लस बी क्यू, मतलब ये दिस बिकम बी सी, ठीक है। सो दिस बी क्यू कैन बी रिटर्न एज दिस आर सी, है ना, बी क्यू को आर सी लिख सकते हैं, मतलब ए आर प्लस ऑफ आर सी प्लस ऑफ आर सी लिख सकते हैं, ठीक है। आर सी प्लस ऑफ आर सी, हाँ, आर सी प्लस आर सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ए आर, देयरफॉर ए आर प्लस ऑफ आर सी, ये तो हो गया ए सी, प्लस ऑफ आर सी को क्या लिख सकते हैं, सी क्यू लिख सकते हैं, सी क्यू लिख सकते हैं। देयरफॉर दिस बिकम्स ए सी प्लस ऑफ सी क्यू, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है, समझ में आ गया, सी क्यू प्लस ऑफ बी क्यू। तो सी क्यू को बी क्यू भी लिख सकते हैं ना, सी क्यू को, यस सी क्यू को, देयरफॉर वी कैन राइट बी सी बी क्यू। चलिए बी क्यू तो था ही हमारे पास, है ना, तो सी क्यू को बी क्यू लिख सकते हैं। सो बाय दैट वे पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। और अगर पहला प्रूफ हो गया, सो दूसरा क्या है, तो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ दिस ए बी सी इंटू आर है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना ना ए बी सी का। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ, इफ़ आई कनेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर एंड इफ़ आई कनेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर एंड इफ़ आई कनेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर, तो मेरे पास क्या ट्रायंगल क्या बन रहा है, ट्रायंगल एक बन रहा है, ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है बी ओ सी बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ए ओ सी। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को सम करूंगा तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी बन जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के एरिया की एल्टीट्यूड हो गया इसके लिए, फॉर दिस एल्टीट्यूड, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, ना, रेडियस से टेंजेंट पे जो लाइन सेगमेंट जा रही है दैट इज परपेंडिकुलर। सो दिस विल बी एल्टीट्यूड, दिस बिकम्स एल्टीट्यूड फॉर दिस, राइट, समझ में आ गया। देयरफॉर व्हाट वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, सो हमने क्या कंस्ट्रक्शन बनाया, कंस्ट्रक्शन क्या बनाया, सो ओ ए को कनेक्ट किया, ओ बी को कनेक्ट किया और ओ सी को कनेक्ट किया, कनेक्ट ओ ए ओ बी ओ सी को कनेक्ट किया, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या क्या ट्रायंगल है, ट्रायंगल वी हैव ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ ए, ये हमारे पास तीन ट्रायंगल है। तीनों ट्रायंगल का हमें एल्टीट्यूड पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द थ्री ट्रायंगल्स विल बी एरिया ऑफ ए बी सी, राइट है। तो दिस विल बी हाफ ऑफ, पहले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ आर इंटू ऑफ ए बी हो जाएगा, यही होगा ना, प्लस ऑफ दूसरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ आर इंटू ऑफ बी सी हो जाएगा दूसरे ट्रायंगल का एरिया, प्लस ऑफ तीसरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ आर इंटू ऑफ ए सी हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस, पिक्चर देख के समझ में आ रहा है, ऐसा हो रहा है। देयरफॉर दिस विल बी हाफ ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ सी ए इंटू ऑफ आर होते हुए दिख रहा है। तो ये तो क्या है, पैरामीटर ऑफ बी सी, दिस इज पैरामीटर ऑफ ए बी सी हो गया, ट्रायंगल ए बी सी हो गया। सो देयरफॉर दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ए बी सी इंटू ऑफ आर। दिस इज बेसिकली, ये पूरा क्या हो गया, दिस इज एरिया ऑफ ए बी सी हो गया, है ना। सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल थ्री ट्रायंगल्स आर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। सो बाय दैट वे वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग। समझ में आया कॉन्सेप्ट। पहला तो ये सिंपल था, उसको बस उसको ओपन करके अरेंज करना था। दूसरा में क्या कंस्ट्रक्शन बना दिया, तो जैसे कंस्ट्रक्शन मैंने बनाया तो एक ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल बनाए, तो ए बी ओ बन गया, ए ओ बी बन गया, दूसरा बी ओ सी बन गया, तीसरा ए ओ सी बन गया। उसके लिए क्या, ये एल्टीट्यूड हो गया, दिस ओ पी इज एल्टीट्यूड, दिस ओ आर इज एल्टीट्यूड एंड ओ क्यू इज एल्टीट्यूड एंड सब ओ एल्टीट्यूड के एरिया के लेंथ क्या जाती है आर, ठीक है।
तो इसका अगर एरिया निकालोगे ट्रायंगल ए ओ बी का क्या होगा, हाफ ऑफ आर एल्टीट्यूड इंटू बेस क्या है, तो बेस ए बी हो गया इसके लिए। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए ये वाला हो जाएगा, बेस ये हो गया, हाफ ऑफ आर इंटू ऑफ बेस बी सी हो गया। इस ट्रायंगल के लिए ए ओ सी के लिए क्या बनेगा, हाफ ऑफ आर इंटू ऑफ ए सी हो गया। तो तीनों का सम करोगे दैट विल बिकम्स एरिया ऑफ ए बी सी बन जाएगा। सो दैट बिकम्स दिस मच। तो वो तो यही प्रूफ करना बोल रहा था ना। सो बाय दैट वे वी प्रूफ दिस थिंग। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो, तो अगर ये क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द इन द गिवन फिगर द encircle of ABC touches the ABC, C and AB, PQ and PQ are respectively. Prove that AR plus और BC plus ऐसा कुछ प्रूफ करना है, ठीक है। सो विद दिस फिगर व्हाट वी कैन से, हम क्या बोल सकते हैं इस फिगर को देखते हुए, क्या समझ में आता है आपको? अगर इस फिगर को देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, सो बोथ आर इक्वल। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से दिस BP इज इक्वल्स टू BR, है ना, दिस PC इज इक्वल्स टू CQ एंड दिस AR इज इक्वल्स टू AQ, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, बिकॉज दिस इज टेंजेंट, एक्सटर्नल टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ABC से टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ एक्सटर्नल पॉइंट से। सो ABC इज व्हाट, दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया? अगर ऐसा कुछ है दैट मीन्स हमें क्या ये वाला करना है, दैट मीन्स हमें इसको प्रूफ करते पहला वाला। तो पहला वाला क्या है, दिस AR प्लस ऑफ BP प्लस ऑफ CQ। अगर इसको प्लस करेंगे तो दिस इज AR एंड दिस इज द BP एंड दिस इज CQ, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली है ना, AR इजकल्स टू BC इजकल्स टू AQ, इसको ये इतना हो ही जाएगा ना। दैट मीन्स है ना, फ्रॉम 1 2 3 1 2 3 करोगे तो ऐड करोगे दैट विल बिकम्स टू दिस मच, है ना। तो क्लियरली दिख रहा है ना। AR इजकल्स टू AQ है, AR AQ के बराबर है ना, दिख रहा है ये चीज़, दिख रहा है, AR AQ के बराबर। AR इज, सो यू कैन सी दिस थिंग, AR इक्वल्स टू AQ, है ना, BP, दिस BP इज इक्वल्स टू BR, दिस BP इज इक्वल्स टू BR, है ना, और CQ इज इक्वल्स टू CQ इज इक्वल्स टू CP, ठीक है। ये तीनों तो प्रूफ हो गया। अब इसको क्या करना है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC, ऐसा भी बोलता है, ठीक है। तो दैट मीन्स है ना, ऐसा कुछ है तो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ABC क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ABC क्या होता है ना। अब डायरेक्टली अपन इस पे आते हैं। सो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ABC, पैरामीटर ऑफ ABC इज, ये वाला तो प्रूफ हो गया पहला वाला। दूसरा इज पैरामीटर ऑफ ABC। तो पैरामीटर ऑफ ABC क्या होगा, पैरामीटर ऑफ ABC क्या होता है, सो दिस बेसिकली AB प्लस ऑफ BC प्लस ऑफ CA होगा, यही होगा ना। AB को क्या लिख सकते हैं, AB को व्हाट वी कैन राइट AR प्लस ऑफ RB। BC को क्या लिख सकते हैं, तो BP प्लस ऑफ PC। CA को क्या लिख सकते हैं, AQ प्लस ऑफ CQ, ठीक है। मतलब ये तीनों का बराबर हो, मतलब लिख सकते हैं अपन 2 ऑफ AR प्लस ऑफ BP प्लस ऑफ AQ इज इक्वल टू, लिख सकते हैं अपन 2 ऑफ RB प्लस ऑफ PC प्लस ऑफ CQ, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये इजकल्स टू हाफ ऑफ पैरामीटर हो गया ना, इसको करोगे तो हाफ ऑफ पैरामीटर भी निकल के आ जाएगा। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना, समझ में आया? सिंपल था ना। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि पहला थ्योरम हमको पता होना चाहिए था, राइट। उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, राइट। तो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन द गिवन फिगर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल PQR। सो इफ PQ इज 10 सेंटीमीटर, सो दिस ये वाला लेंथ क्या है, सो दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, राइट। और क्या है, QR इज, सो दिस लेंथ इज अगेन गिवन, दिस इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दिस लेंथ इज गिवन हाउ मच, दिस लेंथ इज गिवन 12 सेंटीमीटर। चलो, अब क्या दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ QM, ये लेंथ फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना, RN, ये लेंथ फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना, PL। तो अगर ये फाइंड आउट करना तो सिंपल है ना, ये तो है ना। अगर ये मान लो कि 10 है ना, तो लेट्स टेक दिस इज X, लेट्स टेक दिस डिस्टेंस इज X, ये मान लो X है, ये मान लो Y है, और ये मान लो Z है ना, XYZ मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से क्या निकल के आएगा, सो दिस वी कैन राइट ना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ है तो दैट विल बी व्हाट, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट अगर ड्रॉ है दैट मीन्स, सो दिस वैल विल बी इक्वल्स टू PN, है ना। सो दिस LQ विल बी इक्वल्स टू QM एंड दिस M
एम आर विल बी इक्वल्स टू एन आर, है ना। ये तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ है, इसलिए दिस विल बी इक्वल्स, तो x विल बी इक्वल्स टू दिस विल, ये दोनों इक्वल होगा। अब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि x प्लस ऑफ दिस गिवन, है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ। तो अगर जो भी चीज़ दिया हुआ है दैट मीन्स, है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना, क्यू एम आर एन एंड पी एल। चलो ठीक है, दैट मीन्स सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ये x है, ये y है, ये z है। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, है ना, अगर हमने x y z जो माना है जिसको उसी को रख लो, ठीक है। सो देयरफॉर दिस पी एल प्लस ऑफ एल क्यू विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। और क्या होगा, और होगा क्यू एम प्लस ऑफ एम आर विल बी 8 सेंटीमीटर होगा, है ना, समझ में आ रहा है। और देयरफॉर पी एन प्लस ऑफ एन आर विल बी 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को अपन अरेंज करके देखते हैं। पी एल को हमने क्या माना, x माना है, सो दिस इज x। और हमने क्या माना, एल क्यू को माना है हमने x, एल क्यू को हमने एल क्यू रखा है, बट एल क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एम है, एल क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एम है, तो क्यू एम को हमने y माना, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्यू एम हमने माना है y, सो दिस इज y। और हमने एम आर को माना है, कुछ नहीं माना है, बट एम आर इज इक्वल्स टू बेसिकली आर एन है, दैट इज इक्वल्स टू जेड है, मतलब वाई प्लस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 8 है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अभी क्या देखो, तीसरा का पी एन हमने कुछ माना, सो पी एन हमने कुछ नहीं माना है, बट पी एन इज इक्वल्स टू एक्स हमने, क्योंकि वो इक्वल है ना, बाय दिस वे वो एक्स के बराबर है। सो दिस इज एक्स प्लस ऑफ एंड दिस इज जेड है, जेड इज इक्वल्स टू कितना माना, दिस इज 12। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 यहाँ पे सॉल्व करो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा y कैंसिल हो जाएगा एंड x माइनस ऑफ z विल बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 बनेगा। और सिमिलरली मेरे पास इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस ऑफ z इक्वल्स टू 12 है। इक्वेशन ये बना, ये कैंसिल, सो वी गॉट 2 ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 14 बन गया। x कितना आया, सो वी गॉट x इक्वल्स टू 14 नहीं 7 है, सो व्हाट वी गॉट x इक्वल्स टू 7 है। x कितना है, तो 7 आ गया। अगर x 7 आया मतलब हमें x 7 आया तो मतलब y कितना होगा, y 3 होगा, है ना। सो इफ़ x इज़ 3, सो इफ़ x इज़ 3 मतलब y कितना बनेगा, 10 माइनस ऑफ 7, तो y विल बी 10 माइनस ऑफ 7, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो y विल बी 10 माइनस ऑफ 7 मतलब 3 बन रहा है। y अगर 3 है दैट मीन्स z कितना होगा, z विल बी 8 माइनस ऑफ 3 मतलब 5 है। देयरफॉर x इज़ 7, y इज़ 3 एंड z इज़ 5। ये हमें फाइंड आउट करना था, ये डिस्टेंस में फाइंड आउट करना था, ठीक है। x कितना है, तो x इज़ 7 हो गया, y कितना होगा, y इज़ 3 एंड z इज़ 5। ये लेंथ में फाइंड आउट करना था, राइट है, समझ में आ गया। सो बाय दैट वे फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। चलो अगर ये क्लियर है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ क्लियर, ये कैसा बना ये समझ में आ गया ना, ये चीज़ बस ये समझना था, इंपॉर्टेंट था किस तरीके से किसको शिफ्ट करना था, राइट। ये तो थियरम है, दिस इज अबाउट दिस इज बेसिकली थियरम, ये थियरम की अंडरस्टैंडिंग है। ये इसको कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन था, क्वेश्चन को हम डिज़ाइन कर रहे थे, वहाँ पे सोल्यूशन कर रहे थे, यहाँ पे हमने सोल्यूशन निकाला। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन ए सर्कल टचिंग द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा कुछ टच कर रहा है, राइट। और पी एंड बी सी के ट्रायंगल सर्कल को टच कर रहा है, राइट। एंड ए बी ए सी प्रोड्यूस कर रहा है एंड हमें तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक टेंजेंट दिख रहा है, ए से एक टेंजेंट ड्रॉ कर किया हुआ ये दिख रहा है मुझे, है ना। सो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट है दैट मीन्स व्हाट वी कैन से ए क्यू, वी कैन से ए क्यू इक्वल्स टू ए आर, है ना। हमें ये दिखते हो, पहला तो टेंजेंट ये ड्रॉ हुआ, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ है। अगेन मेरे पास एक टेंजेंट दिख रहा है, बी एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे कि ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से एंड दिस बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ये हम दूसरा सेम थ्योरम से हम दूसरा ये बोल सकते हैं। और एक पॉइंट सी भी है जहाँ से ये टेंजेंट आ रहा है, ये वाला, ठीक है। देयरफॉर व्हाट वी कैन से पी सी इज इक्वल्स टू सी आर। ये तो एक ही थ्योरम जो होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, टू टेंजेंट्स ऑन द सर्कल, सो ऑल द टेंजेंट्स आर इक्वल। ये तीनों पॉइंट जो मैंने ड्राइव किया विद द हेल्प ऑफ थ्योरम मैंने ड्राइव किया, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो अपने को एक पॉइंट और दिख रहा है
कि जो ये जो BC जो है सर्कल को टच कर रहा है P पे, ठीक है। तो अगर सर्कल को BC टच कर रहा है दैट मीन्स BC को अपन लिख सकते हैं कि BP प्लस ऑफ PC, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो सर्कल पर टच हो रहा है। और अगर ऐसा लिख सकते हैं दैट मीन्स, है ना, हमें क्या प्रूफ करना है अब हमें प्रूफ करना है कि AQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ABC। AQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पैरामीटर। तो पैरामीटर सबसे पहले समझते हैं, व्हाट इज द पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या है, तो पैरामीटर विल बी पैरामीटर ऑफ ए सर्कल, the parameter of circle is what, so this is what, this is a plus of sorry this is what, this is AB BC प्लस ऑफ C है, ये तो पैरामीटर होता है ना। अगर ये पैरामीटर तो AB तो AB ही है, BC क्या है, सो BC कैन बी रिटन एज दिस, BC को अपन BP प्लस ऑफ PC प्लस ऑफ CA लिख सकते हैं। BC को मैंने ये लिख दिया है ना, लिख सकते हैं अपन ऐसा। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो BP को और क्या लिख सकते हैं, BP को लिख सकते हैं BQ, तो AB प्लस ऑफ BPQ लिख सकते हैं। BC को क्या लिख सकते हैं, BC को BQ लिख सकते हैं, ठीक है। और PC को क्या लिख सकते हैं, PC को क्या लिख सकते हैं, PC को CR लिख सकते हैं, CR प्लस ऑफ CA। तो ये बेसिकली क्या बनेगा, तो BQ प्लस ऑफ AB क्या बनेगा, तो अपने को ये AQ बनेगा प्लस ऑफ AC प्लस ऑफ CR क्या बनेगा, तो ये तो AR बन रहा है। बट दिस इज गिवन कि AQ एंड AR बराबर है, क्या है, AQ एंड AR बराबर है, देयरफॉर दिस विल बी 2 ऑफ AR 2 ऑफ AQ बन जाएगा। दैट मीन्स विद दिस व्हाट वी कैन से AQ विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल सर्कल, पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल, सॉरी दिस इज नॉट सर्कल, दिस इज अ ट्राइंगल। बोल सकते हैं ना सर, 2 ऑफ AQ आ गया है ना, पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल 2 ऑफ AQ आ गया, देयरफॉर दिस इज प्रूफ्ड। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो होप योर कॉन्सेप्ट इज गेटिंग क्लियर विद दिस अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो अगर ये समझ में आ गया दैट मीन्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर हमने फ्रेम किया विद द हेल्प ऑफ थियरम। उसके बाद थियरम से हमने क्या देखा, क्वेश्चन में क्या है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन। तो उसके बाद क्वेश्चन को हमने फ्रेम किया, राइट। देयर आफ्टर वी मूव इनटू द सॉल्यूशन पार्ट, राइट। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, इन एन गिवन फिगर AB इज ए कॉर्ड, सो इन एन गिवन फिगर AB इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है। लेंथ इसका 9.6 है, राइट, एंड ऑफ सर्कल विथ सेंटर O है, ठीक है। एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड टेंजेंट ऑफ ए, एंड टेंजेंट यहाँ से टेंजेंट A भी है, सो दिस, तो जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ है, दैट मीन्स दिस विल बी PA विल बी इक्वल्स टू PB। तो सबसे पहले तो ये नोट कर लिया करो, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, ठीक है। अब कॉर्ड एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को सेंटर को जो टच कर रही है, तो वो कॉर्ड पे जो जा रही है, तो कॉर्ड को ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी और परपेंडिकुलर भी होगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग, है ना। तो ये बन रहा है ना। और सिमिलरली जो सेंटर से जो टेंजेंट पे जो लाइन सेगमेंट जा रही है रेडियस, वो भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये कर लो, सो दिस विल बी, नाउ वी हैव एंगल OAP इज 90 डिग्री है, और क्या है, एंगल AMP क्या है, ये भी 90 डिग्री है ना। ये हमारी क्या है, थियरम से हमारी अंडरस्टैंडिंग है। सो दीज ऑल आर द थियरम से हमने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड किया है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है तो हमारे पास अब क्या क्या दिख रहा है, अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो अपन ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, OM। तो वी हैव ट्रायंगल, क्या है, ट्रायंगल AMO, हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो क्योंकि हमारे पास दिस इज गिवन है ना, 9.6 था, तो ये इंटरसेक्ट 4.8 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया, राइट। सो बाय दिस वे व्हाट वी कैन से, दिस AQ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस ऑफ OM स्क्वायर। ये होते हुए दिख रहा है ना। और अगर ये होते हुए दिख रहा है दैट मीन्स ये क्या बनेगा, AQ क्या दिया हुआ, AQ इज 36, AQ इज 6, सो दिस विल बी 36 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, क्या है, 4M 48 का स्क्वायर, सो दिस इज 4.8 का स्क्वायर प्लस ऑफ OM स्क्वायर, ठीक है। तो OM हमें फाइंड आउट करना है ना, सो OM विल बी हाउ मच, सो द OM विल बी अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4.8 का स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अपन OM को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो द OM विल बी ऑफ व्हाट, OM विल बी अंडर रूट ऑफ A माइनस ऑफ B, A प्लस ऑफ B, A प्लस ऑफ B व्हाट विल बी 6 10.8, सो दिस विल बी 10.8 एंड दिस विल बी 1.2। समझ में आई, A प्लस B, A माइनस B कर दिया मैंने, है ना। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ
1296, ठीक है। सो दिस विल बी 3.636, ठीक है। ओ एम कितना है, ओ एम का लेंथ इज नाउ 3.6 सेंटीमीटर। अब ओ एम हमारे पास आ गया, ठीक है। और अगर ओ एम मेरे पास आ गया, सो व्हाट वी कैन डू, अब नाउ वी हैव अ ट्रायंगल। अब हमारे पास एक ट्रायंगल कौन सा है, तो वी हैव ट्रायंगल दिस। हमारे पास एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, दिस इज द PAM। सो PAM इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे क्या x माना हुआ, PA को हमने x माना था और PM को हमने y माना था। सो दिस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज व्हाट, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो देयरफॉर hypotenuse will be what, so here in this case hypotenuse will be PA square. So the PA square can be written as a PM square plus of AM square, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो PM कितना है, सो दिस इज x स्क्वायर माना है इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस ऑफ 4.8 का स्क्वायर। इस इज इक्वेशन 4 मान लो, x स्क्वायर प्लस ऑफ y, x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस ऑफ 4.8 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, इससे कुछ और तो नहीं निकला, बट एक इक्वेशन बना, ठीक है। अभी और क्या दिख रहा है अपने को, एक ट्रायंगल और है, कौन सा ट्रायंगल, वो है ट्रायंगल PAO। ये भी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है। राइट एंगल कहाँ पे है, तो A पे है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से हियर फॉर दिस, ये हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस इज OP स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस ऑफ OM स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। अब व्हाट इज OP, OP क्या है, OP हमारे पास है x स्क्वायर, और AP क्या है, AP होगा वो हमारे पास y प्लस ऑफ 3.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस OM क्या है, OM is 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। OM हमने निकाला था ना। अब AP को लिख सकते हैं ना, AP को अपन, है ना, AP को लिख सकते हैं x स्क्वायर, OP को लिख सकते हैं, सो दिस विल बी OP स्क्वायर, है ना। हाँ सॉरी, तो इसको अपन लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट हियर, so what we can write here, so this OP can be written as a y plus of 3.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर will be equals to x स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का, ऐसा लिख सकते हैं। so this is equation 5, है ना। अब x स्क्वायर का वैल्यू ये है अपना, है ना। so let's put the value of equation 4 का वैल्यू equation 5 में पुट करते हैं। so this will be what, this will be y स्क्वायर प्लस ऑफ 12.96, ठीक है। 12.96 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस ऑफ 7.2y विल बी इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस ऑफ 4.8 का स्क्वायर प्लस ऑफ 36, ऐसा कुछ बनेगा। तो y स्क्वायर एंड y स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट, विद दिस। तो अपने को क्या बना, 7.2 ऑफ y इज इक्वल्स टू बेसिकली 4.8 का स्क्वायर प्लस ऑफ 36, है ना, माइनस ऑफ 12.96, ये आया बेसिकली, ठीक है। तो ये कितना होगा, सो 4.8 का स्क्वायर विल बी व्हाट, सो नीड टू कैलकुलेट, सो दिस विल बी 4.8 का स्क्वायर विल बी हाउ मच, सो दिस विल बी 4.8 इंटू 4 इंटू 4.8 विल बी 23. So this will be 23.04 प्लस ऑफ 36, प्लस कर दो इसमें प्लस 36, so this becomes 59, this becomes 59.04 माइनस ऑफ 12.96 अपॉन ऑफ 7.2 करना होगा, so that will be y, ठीक है। तो इतना माइनस कर दो, this is the 12.96, so this becomes 46.08, so this becomes 46.08 डिवाइड बाई 7.2, इसमें डिवाइड कितने से करना है, 7.2 से, 7.2, so this 46 डिवाइड बाई 46.08 डिवाइड बाई 7.2, 6.4, so y कितना है, so y is now y is 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब y अगर 6.4 सेंटीमीटर है तो x कितना होगा, 6.4, इसको x विद द हेल्प ऑफ दिस x कैन बी फाइंड आउट, है ना। सो सिंपल कैलकुलेशन अब यहाँ पे, अब इससे विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, समझ में आ गया, गेटिंग दिस थिंग। मेन क्या था, इसको स्ट्रक्चर करके यहाँ तक लाना था, और दिस वी हैव टू डू, y निकल के आ गया तो उसके बाद x यहाँ पे निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। चलो अगर ये क्लियर तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, है ना, ऐसा कुछ दिया हो। ए का रेडियाई ग्रेटर है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल तो बाहर होगा और एक सर्कल कुछ अंदर होगा, ठीक है, जिसका कि सेंटर सेम होगा। एक का रेडियस कुछ इस तरीके से होगा, एक का रेडियस कुछ इस तरीके से है। सो इट्स इज गिवन दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ये वाला ए हो गया एंड ये वाला बी हो गया, ठीक है, क्लियर है विद दिस 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडिया ए एंड बी। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है, और ये स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है, दैट मीन्स लेट्स टेक दिस इज ओ, दिस इज एम एंड दिस इज पी। अब क्या क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्कल, और क्या है गिवन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडिया ए एंड बी गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, है ना, कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो अगर ऐसा कुछ है कॉर्ड ऑफ ए, इफ दिस इज सो दैट मीन्स एक कॉर्ड है जो कि ऐसा कुछ कॉर्ड होगा, है ना, ऐसा कुछ कॉर्ड होगा, ऐसा कुछ कॉर्ड होगा, ये यहाँ पे टच कर रहा होगा, लेट्स टेक यहाँ पे टच कर रहा है ना कॉर्ड। अगर ये यहाँ पे कॉर्ड टच कर रहा हो मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इसको मैं आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो है ए जो है, ए को अपन ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, ए को अपन ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, ऐसे भी बना सकते हैं। सो दिस इज ए नाउ, ठीक है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसा कैसा रहेगा, ये दिस इज बी, ओह शिट, चलो इसको फिर से बनाते हैं। एक सर्कल ऐसा है, ठीक है, एक कॉर्ड है जो कि कॉर्ड कहाँ पे कैसा है, तो कॉर्ड एक ऐसा है, लार्जर सर्कल जो कॉर्ड है वह छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो रेडियस जो था छोटे वाले सर्कल का रेडियस था वो कॉर्ड पे मैंने गिराया। तो ये तो टेंजेंट हो गया दूसरे सर्कल के, छोटे वाले सर्कल के लिए, और टेंजेंट हो गया था परपेंडिकुलर हो गया, एंड ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स हमारे पास कुछ इस तरीके का बनते हुए दिख रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ओ दिस इज एम, हमें एन एन का लेंथ फाइंड आउट करना है, क्या, दिस इज एम एंड दिस इज एन, ये एम एन लेंथ का लेंथ फाइंड आउट करना है। लेट्स टेक दिस इज द क्यू पॉइंट, एम एन का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर एम एन का लेंथ फाइंड आउट करना है तो इसको अगर मैं इसको यहाँ से एक और कंस्ट्रक्शन बना दूँ तो मुझे बेसिकली क्या बनते हुए दिख रहा है ना, इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, बाय द वे। सो दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस इज बी, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है अपने को कि सो व्हाट वी कैन सी, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। सो व्हाट वी कैन सी, दिस ओ क्यू एम इज व्हाट, एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है ना। अगर राइट एंगल है देयरफॉर व्हाट वी कैन से, ओ एम स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ एम क्यू स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा लिख सकते हैं दैट मीन्स, है ना, ओ क्यू इज व्हाट, ओ एम इज व्हाट, दिस इज ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू दिस इज द बी स्क्वायर प्लस ऑफ एम क्यू स्क्वायर, है ना, एम क्यू स्क्वायर दिस स्क्वायर। सो दिस का एम क्यू स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, है ना। एम क्यू क्या हो गया, तो एम क्यू लेंथ विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। एम क्यू लेंथ ये मिला। अब हमारे पास बेसिकली ट्रायंगल क्या है, 2 ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन कौन सा है, तो ओ एम क्यू है, और ट्रायंगल कौन सा है, तो ओ क्यू एन है, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को क्या अपन कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं, बिकॉज इन दिस ट्रायंगल व्हाट यू कैन सी, दिस ओ एम विल बी इक्वल्स टू ओ एन, है ना, क्योंकि दोनों रेडियस है बाहर वाले ट्रायंगल का, एंड ओ बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, बिना लेंथ है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। एंड व्हाट वी कैन सी, दिस एंगल ओ क्यू एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू एन, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर एस ए एस से ये क्या बन रहा है कि दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है, सो बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देयरफॉर व्हाट वी कैन से, दिस एम क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एन हो जाएगा। एम क्यू का डिस्टेंस तो हमने ये निकाल रखा था, सो दिस विल बी, सो एम एन कितना हो जाएगा, एम एन विल बी 2 ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ एम एन, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर ऑल ऑफ यू। अगर ये समझ में आ गया, है ना, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, है ना, किस तरीके से हमें पिक्चर को डिज़ाइन करके किस तरीके से डिज़ाइन करना था, ठीक है। द रेस्ट ऑल आर नथिंग, वेरी वेरी सिंपल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरम्स, ठीक है। चलो अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम।
Next problem we don't have, but I think understanding of circles and it's related to problem related to circles based on their theorems are very very clear to all of you. So if you remember now, if you know all the theorems, अगर आपको theorems याद हो गए हैं with the practice, so any kind of problem related to circles, triangles are very very easy, right? Because all the problems are basically बस थोड़े बहुत ट्रिक्स होते हैं, so that you will know with the help with the practice. ठीक है, चलो. So by the meantime, if you like this class, please like, share, subscribe the channel so that you get the regular updates regarding all the classes of Maximus, right? So by the meantime, bye bye to all of you. पढ़ाई करते रहो, लर्न करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, so that you will learn more and more. Okay.